Right now, we get you some big breaking news at this point in time where the CBI has decided to move the High Court against the trial court's verdict in the Delhi liquor policy case. Well, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time. The agency is planning to file the appeal immediately, citing that several aspects of its investigation were either ignored or not adequately considered by the lower court, while acquitting Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and others. Well, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time. CBI, that was investigating the Delhi liquor policy case, will move the High Court against the trial court's verdict in the Delhi liquor policy case. The agency is planning to file the appeal immediately, citing that several aspects of its investigation were either ignored or not adequately considered by the केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? And we're getting you some more big breaking news at this very story that we are tracking very closely. The Delhi Rouse Avenue Court has recommended departmental inquiry against the investigating officers in the Delhi Excise Policy CBI case. Well, that is another breaking news on the very same story, where the Delhi Rouse Avenue Court has recommended departmental inquiry against the investigating officers in the Delhi Excise Policy case. Well, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time. First, the CBI is going to be moving the Delhi High Court against the trial court's verdict in the Delhi liquor policy case. And then, of course, the Rouse Avenue Court has recommended departmental inquiry against the investigating officers in the Delhi Excise Policy case. Well, that is a big development that has come in on the Delhi Excise Policy case that was being investigated by the CBI, while the CBI is going to be filing an appeal immediately in the High Court, challenging the lower court's verdict that has given a discharge, that has acquitted both Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, along with several other leaders and party workers in the Delhi Excise Policy case. The Rouse Avenue Court, on the other hand, has recommended departmental inquiry against investigating officers in Delhi Excise Policy case. Remember, the CBI has decided to move the Delhi High Court against the verdict, as they feel that there were several aspects of the investigation that was either being ignored or not even considered by the lower court, while acquitting Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. The visuals are on your screens right now. There is a sense of celebration and relief in Aam Aadmi Party camp. The leaders are seen hugging each other in this moment of relief and joy. But is all well yet? Is it an early celebration? Is it a premature celebration on the part of the Aam Aadmi Party? Because the CBI is not willing to let go of the Delhi Excise Policy case yet. They feel that there were several aspects of the investigation that was either ignored or not even considered by the lower court, while acquitting Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. And that is the reason why the CBI has decided to move the High Court against the trial court's verdict in the Delhi liquor policy case. In the interim, the Delhi Rouse Avenue Court has recommended departmental inquiry against the investigating officers in the Delhi Excise Policy case. We have to wait and see what is going to be the response coming in from the CBI on that recommendation put forth by the Delhi Rouse Avenue as far as a departmental inquiry against their own investigating officers are concerned in the Delhi Excise Policy case. But in the meanwhile, those visuals on your screens, the former Chief Minister and the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal
was visibly moved and emotional when that acquittal came from the Rouse Avenue Court. He has been flanked by the former Deputy Chief Minister Manish Sisodia. There is a sense of celebration. You can see party workers, all those who have stood with Arvind Kejriwal through these trying times, has now decided to celebrate. Atishi hugging Manish Sisodia over there. All the senior Aam Aadmi Party leader today have decided to come together and celebrate. There were statements that came from Arvind Kejriwal and Saurabh Bharadwaj, Gopal Rai as well, who had held press conferences earlier in the day as well to talk about how the investigating agencies were being misused against opposition parties, especially against Aam Aadmi Party ahead of the Delhi Assembly elections. But it remains to be seen what is going to be the legal recourse that the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal is going to take as far as the CBI moving the High Court is concerned, whether at all this is going to be a short-lived celebration for the Aam Aadmi Party. Does it mean that there is a lot more that can possibly damage as far as the ongoing Delhi liquor policy case is concerned? My colleague Jeet Bhatri is joining me right now to get us more details. Jeet, ये बताइए कि अभी क्या कुछ हम जानते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कदम उठाए जाएंगे जो सीबीआई अभी हाई कोर्ट का रुख करेगी और दिल्ली राउस एवेन्यू के जो वर्डिक्ट है उसको चैलेंज करेगी। और जहां तक राउस एवेन्यू कोर्ट है, उन्होंने भी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की घोषणा की है, एक रेकमेंड किया है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। मामले में न सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को बरी किया, बल्कि जो एजेंसी है उसकी जांच के तरीके और चार्जशीट को भी उन्होंने उस पर सवाल खड़े किए। और यहाँ तक कि उन्होंने, जो जज हैं जितेंद्र सिंह स्पेशल जज, उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना लूप होल्स वाली चार्जशीट कभी नहीं देखी, जहाँ चार्जशीट कुछ और कहती है, आपके एविडेंस कुछ और होते हैं। इसी मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन का मामला नहीं बनता है, कोई कॉन्स्पिरेसी का मामला नहीं बनता है, ऐसे में सबको बरी कर दिया है। अब आपने पूछा आम आदमी पार्टी इस फैसले के बाद क्या होगा, सीबीआई कह रही है वो हाई कोर्ट जाएगी, कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी, वो ये करेगी कि इसी पे रिलाई करते हुए एक ईडी का केस और है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें संजय सिंह भी गिरफ्तार थे। ये नेता तो थे ही थे, साथ में संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे। अब यहाँ की जो लीगल टीम है आम आदमी पार्टी की, वो कहेगी कि जब मेन केस जो है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का है, अगर वही नहीं बनता है तो उसका अपराध नहीं हुआ, आय नहीं हुई, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं होगी, तो ऐसे में उस केस को भी खारिज किया जाए। तो फिलहाल इस चीज़ को लेकर के मंथन चल रहा है, हालांकि अभी डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है। उसके बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जो है वो बताने की कोशिश करेगी, और अभी से कहना उन्होंने शुरू कर दिया है कि दरअसल उनके खिलाफ कोई मामला था ही नहीं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, जिसके तहत उनके बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमे हुए, उनको गिरफ्तार किया गया। अब जब कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो देखिए मैं इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर पे हूँ, आपको थोड़ी झलकी दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए सेलिब्रेशन चल रहा है, यहाँ पर ढोल बज रहे हैं, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। तो फिलहाल ये माहौल बना हुआ है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के घरों पर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हम बात करें या फिर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, क्योंकि इस मामले में संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे। तो तमाम नेताओं ने कहा है कि इस कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि जो मामला था वो पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड था, और कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। जी बिल्कुल, फैब्रिकेटेड मामला के बारे में बात सामने आ रही है। अभी तक सीबीआई ने ये नहीं बताया है कि क्या ऐसे पहलू है जिसके बारे में सीबीआई हाई कोर्ट मूव कर रही है, जहां पे वो कह रहे हैं कि कई ऐसे अहम पहलू है जिसको राउस एवेन्यू कोर्ट ने कंसिडर तक नहीं किया अक्विटल देने से पहले। क्या कुछ हम जानते हैं इसके बारे में कि क्या ऐसे बिंदु है जिसके बारे में सीबीआई जो है हाई कोर्ट अप्रोच करेगी? बिल्कुल, देखिए जिन सवालों पर हम बात कर रहे हैं, यही सवाल फिलहाल सीबीआई को परेशान कर रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से क्या कह के अपेक्स कोर्ट में जाएंगे, ऊपर की कोर्ट में जाए, हायर कोर्ट में जाए, और वहाँ पर कहे कि देखिए जो ट्रायल कोर्ट ने हमारी चीज़ों को ठीक से देखा नहीं, कंसीडर नहीं किया, तो इस मामले में जो निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट है उसके फैसले को पलटा जाए। इसके लिए देखिए अभी बात मंथन चल रहा है, लीगल ओपिनियन ली जा रही है, साथ में जो कि कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर होगा उसको देखने के बाद में ये सीबीआई तय करेगी कि आखिर किन किन पॉइंट्स हैं जिनको वो अपने फेवर में हाई कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो उसको लेकर के अभी आत्ममंथन चल रहा है, उसके बाद जो भी डिस्कस होगा, और जब ईडी माफ़ कीजिएगा सीबीआई जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट मूव करेगी और वहाँ पर अपनी प्रेयर में क्या क्या कहती है, तब इस बात का खुलासा होगा कि कौन से बिंदु हैं जिनको सीबीआई चाहती है कि उस पर कोर्ट जो है विचार करे।
जी बिल्कुल, अजीत भाटी हमारे साथ बने रहिए। कुछ ऐसे रिएक्शंस आए, पहले वो देख लेते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट रिएक्शंस कमिंग इन ऑन द स्टोरी फ्रॉम द आम आदमी पार्टी कैंप। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges was framed. So इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give a structured reply. जी गुरु सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा अब गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या? दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी मेरे साथ हैं। आपकी सरकार और पार्टी पर सबसे बड़ा कोई धब्बा लगा था तो ये लगा था, क्या लगता है कोर्ट के आदेश के बाद वो धब्बा धुल गया है? देखिए, आज का जो कोर्ट का आदेश है वो दिखाता है कि सच्चाई का रास्ता चाहे कितना मुश्किल हो, चाहे कितना संघर्ष हो, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की ही होती है। आज कोर्ट के इस आदेश ने दिखा दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया, किस तरह से झूठे आरोप लगाए, किस तरह से गलत तरीके से गिरफ्तार किया और जेल में रखा। लेकिन आखिरकार न्यायपालिका में जीत सच्चाई की ही हुई, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की हुई। पहले जो बेल एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि 2 मिनट भी नहीं ठहरेगा। अब जब ट्रायल कोर्ट के जो जज थे उन्होंने बोल दिया कि ऐसी चार्जशीट ही नहीं देखी, इतने इसमें अंदर लूप होल्स हैं, कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, तो क्या लगता है कि इसमें आगे जब, क्योंकि इसी पे बेस्ड ईडी का मामला भी है, उस पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ईडी का मामला तो अब ख़त्म है, क्योंकि ईडी कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, अगर यहाँ पे कोई क्राइम ही नहीं हुआ है तो फिर किसी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग हो ही नहीं सकती है। तो एक तरह से ईडी का केस भी सीबीआई के केस के साथ इफेक्टिवली ख़त्म हो गया है। आज के इस ऑर्डर ने देश को 2 चीज़ें दिखा दी हैं, एक तरफ बीजेपी का षड्यंत्र और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी और अरविंद केजरीवाल का संघर्ष, जो इतने झूठे आरोपों के बाद भी दबे नहीं, टूटे नहीं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो लड़ते रहे। लेकिन आज मैं बीजेपी से पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से गलत तरीके से हमारे नेताओं को जेल में डाला, जो उनके परिवारों ने झेला, जो मनीष सिसोदिया जी की पत्नी की तबीयत खराब हुई, वो बार बार अस्पताल गईं, जो संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता ने सहा, जो अरविंद केजरीवाल की बूढ़ी माँ ने सहा, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सबूतों को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए ऐसे हालात बने। ये वही बीजेपी नेता हैं जो पहले जब बेल नहीं मिलती थी कहते थे भाई बेल नहीं मिल रही है, इसका मतलब भ्रष्टाचार तो हुआ है। आज कहें ना, हिम्मत है तो, कि आज कोर्ट ने बेल नहीं दी है, आज कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है, आज कोर्ट ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे डिसिप्लिनरी एक्शन
करने को कहा है। तो आज तो ये बिल्कुल साबित हो गया कि किस तरह से एजेंसीज को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उपयोग किया जा रहा है। मैं तो मोदी जी से आग्रह करूंगी, देश पर ध्यान दीजिए, गरीबी पर ध्यान दीजिए, बेरोजगार लोगों पर ध्यान दीजिए, जो क्राइम हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अब ये सब षड्यंत्र छोड़ दीजिए। ठीक है, तो साफ तौर पर जो है आतिशी कह रही हैं कि षड्यंत्र था और षड्यंत्र का खुलासा जो है वो कोर्ट ने जिस तरह से क्लीन चिट दी है, बरी किया है, तो उससे साबित हो जाता है कि जो मुकदमा था वो प्रेरित था और इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी अब हावी होती हुई नजर आएगी। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। मनीष सिसोदिया मेरे साथ है। मनीष जी, आपको तो तकरीबन 2 साल जेल में रहना पड़ा था, आज जब आप बाहर निकले भावुक भी थे, तो क्या वो क्षण थे आपके ये लिए? 3 साल का समय आसान तो नहीं था, घुट घुट के जीने का समय था, लेकिन फिर भी परिवार ने, पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सबने बड़ी हिम्मत से काम लिया और आज जीत हुई है। इसमें एक सबसे बड़ा मैसेज गया है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आप विपक्ष के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। आप सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके झूठे केस चलवा रहे हैं। आज पूरा देश, आज हर वो आदमी जो इस केस को बारीकी से देख रहा था, पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से कि भाई बताइए ना, ये केस तो ट्रायल लायक भी नहीं समझा गया। अब ये बताइए कि जो ईडी का मामला था वो भी इस पे आधारित था, आपको क्या उम्मीद है कि उसमें भी राहत मिलेगी? क्योंकि इसमें बोली सीबीआई कोर्ट जाइए। देखिए, देयर वाज नो मनी, देयर वाज नो लॉन्ड्रिंग। फर्जी केस केवल क्योंकि ईडी का केस इसलिए लगाया गया क्योंकि मोदी जी की सबसे बड़ी सिपहसालार ईडी है। मोदी जी का सबसे बड़ा हथियार ईडी है, जो लोगों को अंदर जेल में बंद करके रखता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को, विपक्ष के नेताओं को, जिसको मर्जी आता है उठा के ईडी में बंद करके डाल देते हैं। देश के बड़े बड़े व्यापारियों को, जो इनकी पार्टी को चंदा देता है वो अच्छा है। इस केस ने एक चीज़ और एक्सपोज की है कि ईडी के नोटिस दे दे के चंदा लिया गया अलग अलग व्यापारियों से। ये भी इस केस के जब इसकी जांच आ रही थी, मीडिया में खूब आया कि जिसको ईडी का नोटिस भेजा, जिसने चंदा दे दिया, उसके खिलाफ में उसकी जमानत हो गई, उसको छोड़ दिया गया। जिसने पैसे नहीं दिए, जिसने चंदा नहीं दिया, तो नरेंद्र मोदी जी एक्सपोज हो गए हैं इससे। आम आदमी पार्टी की छवि पे अगर सबसे बड़ा धब्बा था तो यही था, जिसकी वजह से दिल्ली की सत्ता भी गई। अब क्या लग रहा है कि क्या धब्बा पूरी तरह धुल चुका है और जो पंजाब में सामने चुनाव है उसका फर्क पड़ेगा? पंजाब चुनाव तो एक स्टेप है। मुझे लगता है इस देश की राजनीति में अब ये सवाल उठेगा कि ईडी और सीबीआई के दम पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अजय माकन की शिकायत थी है, ठीक है। तो देखिए, मनीष सिसोदिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पहले से कहते आ रहे थे कि इस मामले में कोई दम नहीं है, राजनीति से प्रेरित है, और 2 साल तक उनको जेल में भी रहना पड़ा। अब इस मामले में जब बरी हुए हैं कोर्ट से, तो इसको बड़ी राहत के तौर पे मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनके दावे थे उसको कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। My colleague Jeet Bhati continues to be with us, who got us all those exclusive reactions from the top leaders of the Aam Aadmi Party. Jeet, कहीं ना कहीं ये इस पूरे लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट से आम आदमी पार्टी लीडर्स के अंदर में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया है वापस बीजेपी और सरकार की तरफ खड़े होके उनको चैलेंज करने के लिए। बट क्या ये आत्मविश्वास कोर्ट में भी नजर आएगा, जहां पे सीबीआई इस पूरे मामले को अभी रफा दफा नहीं कर रही है? बीजेपी ये कह रही है कि काफ़ी ऐसे प्रूफ थे, एविडेंस थे जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया और इसी को लेके सीबीआई जो है वो चैलेंज करेगी आज के इस वर्डिक्ट को। क्या आम आदमी पार्टी वापस से एक लड़ाई के लिए तैयार है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है कि वो पूरी तरह तैयार है, उनका जोश पूरी तरह हाई है। उनका कहना है कि वो पहले से कहते आ रहे हैं कि मामले में दम नहीं था, ना फिर करप्शन हुआ, ना मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्योंकि अपराधी नहीं हुआ तो आई भी नहीं हुई। इसको लेकर जब फैसला आया है राउजनी कोर्ट का, तो उसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे जो दावे थे उनको कोर्ट ने भी सही माना है, और ऐसे में अब उनको ये पूरी उम्मीद आशा है कि जो ईडी का मामला था, जो कि इसी केस पर बेस था, अब वो भी खारिज हो जाएगा। दूसरी तरफ सीबीआई जो है वो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ पर देखें जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को ट्रायल के लायक भी नहीं समझा है, तो ऐसे में फिलहाल जो एज है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में सीबीआई जो है वो हाई कोर्ट के सामने कुछ ऐसे तथ्य रख पाती है जिनको कहे कि हाँ, कोर्ट ने इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया था, जिनके आधार पर
आरोप तय किए जाने थे, लेकिन वो आगे की बात है। अभी मैं इस वक्त की बात करूं तो आम आदमी पार्टी का जोश पूरी तरह हाई है और उनको लग रहा है कि अब जो उनकी छवि पर सबसे बड़ा धब्बा था, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उस पर सबसे बड़ा जो आरोप था वो करप्शन का था। अब करप्शन के आरोप को ही यहाँ पर अगर कोर्ट ने खारिज कर दिया है तो सीधे तौर पर उनको लगता है कि उनकी जो ईमानदारी वाली वो दावे करते थे, बातें करते थे, उस छवि को एक बार फिर से उन्होंने साफ कर लिया। उस छवि को लेकर जनता के पास जाएंगे और उससे जो आगामी राज्य हैं चुनाव होने के, चाहे वो पंजाब की बात करूं या फिर मैं गुजरात की बात करूं, क्योंकि दिल्ली में तो अभी 4 साल और हैं चुनाव को, तो उनमें भी उनको फायदा। ऑलराइट, जीत भाटी हमारे साथ बने रहिए और हम आपके पास दोबारा आएंगे. वी गेटिंग यू सम बिग ब्रेकिंग न्यूज एट दिस पॉइंट इन टाइम, where according to the Aam Aadmi Party sources, the party will move an application in the Enforcement Directorate case seeking the discharge of Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and other Aam Aadmi Party leaders. Well, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time. Sources claim that with the CBI case no longer standing, the ED case does not hold legal ground. The discharge application will be filed in the Enforcement Directorate Court, citing the recent verdict in the CBI case as the basis. Well, that is the big move that sources from the Aam Aadmi Party camp is telling your channel News9, that the party has decided to move an application in the ED case seeking the discharge of Arvind Kejriwal and Manish Sisodia along with the other Aam Aadmi Party leaders, where they claim that the Central Bureau of Investigation case, since no longer stand, the ED case does not hold legal ground as well. The discharge application will be filed in the ED court, citing the recent verdict in the CBI case as the basis. Clearly, as far as Aam Aadmi Party is concerned, they have decided to take the cudgel against the government. They are not willing to pull back any punches. They have decided to use this opportunity to go ahead and seek a discharge in the Enforcement Directorate case as well, since the CBI case does not hold, the ED case also has no grounds for it.